गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरी ज़मीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, तेरी याद सदा चाहे जाने मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून गए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे गलियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहा डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you. Namaskar, I, Reshu Singh, on behalf of Central Sanskrit University, New Delhi, Mumba Devi Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Mumbai, KJ Somaiya Campus, Mumbai, and on behalf of Bharatiya Vidya Bhavan, I welcome you all in this program titled New Perspectives of Indic Intellectual Heritage, Vikas Yatra, One-Day Intellectual Dialogue. We are beginning with today's first session, that is keynote session. I would like to call upon on stage Shri Rohit Kumar Singh. I welcome you, sir. Sir is National Convener of Yuva Chetna Sanstha. He is trying for the upliftment of village, poor, farmers, laborers, and youth. And it is not limited to a town or a city. It is from Kashmir to Kanyakumari. So, his main contribution was during COVID is highly appreciated. Sir is continuously working for the promotion of Indian culture and civilization. Audience, I would like you to welcome Sir.
I would like to call upon for Sir's facilitation, Professor Bharat Bhushan Mishra Ji, please come on the stage and welcome, Sir. Next guest, chair of the session, I would like to call here Dr. Mohan Shri Krishna Kashikar Ji. Sir is presently professor and head PG Department of Political Science, RTM Nagpur University. Sir did his PhD in 1992 from Nagpur University. Sir also secured a Bridge Lal Bihani Gold Medal for holding first position in merit at MA. In 1986, he received fellowship in the name of the late Paul Harris by the Rotary Foundation to work as one of the 50 ambassadors of goodwill selected from all over the world in 1997 to 98. He worked as visiting fellow at Institute for Conflict Analysis and Resolution, ICAR George Mason University, Fairfax, Virginia in 1997 to 1998, sir. Sir worked as unit coordinator and editor of the Nagpur Center on project to compile Encyclopedia of Hinduism undertaken by University of North Carolina and India Heritage Research Foundation, USA. Sir presented research paper, Conflict Resolution is SAG and Methods of Conflict Resolution in Hinduism in seminar at ICAR George Mason University, USA. Sir participated in a seminar on South Asian Society and Politics organization by the Voice of America, Washington, D.C., 1998. Sir, there is many more to read. Sir has organized many national and international conferences. He also chaired many conferences. There is a list I could read. He is an editor of Humanities Research Journal of RTM Nagpur University. Sir has published 12 books, 57 research papers in national and international journals. Sir's latest book is Hindu Dharma for the New Millennium with a foreword from respected Dr. Mohan Ji Bhagwat. Sir, there are a lot of to read, but I believe time could have permitted me. Sir, you're welcome. I would like to call upon Professor Pandey Ji. We welcome you, sir. It's an honor to have you here. Now next, our next speaker of the day, Dr. Mangesh Neelkant Pathak Ji. I call you upon the stage. Sir is an assistant professor, Department of English, R.S. Mundle, Dharmpet Arts and Commerce College, Nagpur. He's a director, student development, RTM Nagpur University. Sir has earned MA Sanskrit degree, B.Ed, PhD in Sanskrit. Sir has 14 years of professional experience of teaching and Sir has attended various seminars, conferences and organized various conferences and seminars in various occasions. Sir has published research paper in journals, number of papers and one book. And Sir has completed UGC sponsored research project as well. Sir has also professional affiliation to Vidarbha State Secretary, Vidya Bharati, Vidarbha Life Member. He's also a life member of All India Oriental Conference. He's a member of Board of Studies Sanskrit, RTM Nagpur University, and member of Board of Studies Ved, KK Sanskrit University, Ramtek. We welcome you, sir. I welcome you all, sir, here. Shri Rohit Kumar Singh, sir, would like to speak first. I hope it would go. And we have a chair of the session. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय
के द्वारा आयोजित विकास यात्रा, जिसके प्रथम सोपान का आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली और मुंबा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज भारतीय विद्या भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में छात्र छात्राएं, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, मंचस्थ डॉक्टर काशेकर जी, डॉक्टर मंगेश पाठक जी, कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मौजूद रहे महाराज करपात्री जी के विचारों के संवाहक, देश भर में सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में आत्मीयता के साथ संलग्न पूज्यपाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और माता सरस्वती के वरदपुत्र आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवास वाराखेरी जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई परिसर के निदेशक डॉक्टर पांडे जी और सम्मानित लोग। महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन के क्रम में और पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से भारत की विकास यात्रा, खासकर संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन में जो पिछले 8 वर्ष में स्वर्णिम कार्य हुए हैं, उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। लेकिन मैं भी जो इन 8 वर्ष के कार्यकाल को महसूस करता हूं, उसको सूक्ष्मता के साथ संक्षेप में आप सबों के समक्ष रखने का सदप्रयास करूंगा। मित्रों, मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए जो देश के अंतिम गांव माना गए, और माना पहुंचकर उन्होंने भारत के उन लोगों से मुलाकात की जिन तक विकास की गंगोत्री पिछले 75 सालों में नहीं पहुंच पाई, जो स्वयं में इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत की विकास यात्रा को दिल्ली से अंतिम छोर तक ले जाने हेतु अनवरत, निरंतर और लगातार प्रयासरत हैं। माना उनका पहुंचना इस बात का जीवंत उदाहरण है। मित्रों, जिस प्रकार से गुजरात में मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र भाई ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया और भारत के प्रथम गृह मंत्री जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई लड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी एक बड़ी मूर्ति स्थापित की और उनकी मूर्ति के स्थापना के लिए पूरे देश से सहयोग की दृष्टि से लोहा का मांग किया गया और देश भर के लोगों ने सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए लोहा का योगदान दिया। उससे प्रधानमंत्री जी का व्यापक देश के प्रति दृष्टिकोण और सोच परिलक्षित होता है। आज मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो हमारा पड़ोसी देश है जो अखंड भारत के स्वप्न की दृष्टि से हमारा ही अभिन्न है, पाकिस्तान। वहां के एक बड़े पत्रकार हैं हामिद मीर साहब, उनका नाम यहां बैठे कई लोग जानते होंगे। तो हामिद मीर का एक ट्वीट मैंने पढ़ा इस प्रेक्षागृह में आने के क्रम में। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो ट्वीट में आप लोगों के समक्ष पढ़ने का प्रयास करूंगा। वी कैन डिफर विथ नरेंद्र मोदी ऑन मेनी इशूज, बट वी मस्ट एक्सेप्ट दैट आफ्टर रिसीविंग द सियोल पीस प्राइज in South Korea, he announced that the entire prize money of rupees 1.30 crore would be given to the Namami Ganga project. Impressive. मतलब प्रधानमंत्री जी को सियोल में जो पुरस्कार के स्वरूप में 1.30 करोड़ रुपया मिला, मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपया, वो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की नदी नहीं, भारत की जननी स्वरूपा माता गंगा के स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिया। इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण प्रधानमंत्री जी के समर्पण का विकास यात्रा के संदर्भ में मेरी दृष्टि में कोई नहीं हो सकता है। स्वामी जी भी बोल रहे थे, महामहिम राज्यपाल भी बोल रहे थे
किस प्रकार से काशी की काया को कल्प करने का जो काम प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार ने पिछले 8 सालों में किया, उसको कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में यहां बैठे कई लोग 2014 के पहले भी गए होंगे। कास्कर साहब बैठे हैं, नागपुर से संबंधित हैं, डॉक्टर पाठक भी बैठे हुए हैं। पतली सकरी गली में लाइन लगना पड़ता था, अगर कोई हंगामा हो जाए तो लोग गिर जाते थे। सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर जिस प्रकार से भव्य मंदिर, भव्य काशी प्रधानमंत्री जी ने बना दिया, वो अगर क्वेतों से कम है तो फिर मुझे लगता है कि लोगों के आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन जल्दी कैंप लगाकर कराना पड़ेगा। मित्रों, औरंगजेब ने किस प्रकार से हमारी संस्कृति और सभ्यता के ऊपर हमला किया, हमारे मठों को, हमारे मंदिरों को, हमारे धर्माचार्यों के ऊपर हमला किया गया। और उसके बाद देश में जिन लोगों ने राज किया, चाहे वो अंग्रेज हों, पुर्तगाल हों, डच हों, उन लोगों ने भी कोई कोर कसर हमारी संस्कृति और सभ्यता के समापन की दृष्टि में नहीं किया। देश की आजादी के बाद लोग मंदिर जाने से कतराते थे। इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठुकराया ही नहीं, बल्कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रोकने का प्रयास किया कि आप भी, जो भारत का संविधान सेकुलर सोवरेन रिपब्लिक की बात करता है, उसके संरक्षण की दृष्टि से सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में मत जाइए। लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और वो गए। मुझे तो गर्व होता है, और मुझे लगता है आज देश की 130-140 करोड़ आबादी को गर्व होता होगा जब देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है और तिलक लगाकर उस देश के हिंदू मठ मंदिरों में पूजा करके निकलता है। अगर मेरा देश बदल नहीं रहा है तो फिर क्या हो रहा है? यह गर्व का क्षण है, यह गौरव का क्षण है। आदरणीय कोश्यारी साहब बोल रहे थे, सड़क बन जाएगा, नाला बन जाएगा, नदियां साफ हो जाएंगी, बच्चे पढ़ जाएंगे। यह इस देश में पहले भी होता रहा। आईआईटी का निर्माण हुआ, एम्स बना, लेकिन क्या लोगों की बीमारी का संपूर्ण इलाज हो गया? क्या पूरे देश में शिक्षा की अलख संपूर्णता से जग गई? मेरी बात को कोई मिसइंटरप्रेट नहीं करेगा। शिक्षा का अलख अनवरत रूप से निरंतरता के साथ देश के अंतिम गांव माना तक पहुंचना चाहिए। वो पहुंचेगा, उस प्रक्रिया में सरकारें लगी हुई हैं। लेकिन देश की आजादी के 75 सालों के बाद भी जो देश की बहुसंख्यक आबादी के मन में डर का वातावरण मौजूद था, वो पिछले 8 सालों में चुटकी बजाते के साथ समाप्त हो गया। यह परिवर्तन नहीं है, यह विकास नहीं है, तो क्या है मित्रों? भाइयों और बहनों, चूंकि अन्य वक्ताओं को भी बोलना है और हमको भी आगे जाना है। आज इस देश में माता विंध्याचल के मंदिर को ले लीजिए या बलिया के भृगु बाबा के मंदिर को ले लीजिए, हर जगह कॉरिडोर का काम लगा हुआ है। हिंदी के प्रति, संस्कृत के प्रति, देश की आजादी के 75 सालों के बाद भारत की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसको जो सम्मान मिला वो कम मिला क्या? मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह गए और उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई में हिंदी भाषा के सदुपयोग के कोर्स के पाठ्यक्रम को लॉन्च किया। यह देश में परिवर्तन की गाथा नहीं लिखी जा रही है तो क्या हो रहा है? अभी स्वामी जी ने अपने चर्चा के क्रम में पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के संदर्भ में चर्चा किया। धर्मेंद्र प्रधान जी जो आज भारत के यशस्वी शिक्षा मंत्री हैं, मेरी जानकारी में उस समय स्टील या पेट्रोलियम के मंत्री होते थे। जगन्नाथ जी का मंदिर गड़बड़ा रहा था, मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी। धर्मेंद्र जी ने स्पेशल इंटरेस्ट लेते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और भगवान जगन्नाथ का मंदिर फिर चमकने लगा। ये सब तो मंदिर, मठ, सड़क निर्माण सब चल रहा है। भारत की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर औरंगजेब से भी ज्यादा बड़ा कुठाराघात कब हुआ, कैसे हुआ? जब हमारी शैक्षणिक व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा 1835 में लॉर्ड मैकोले नामक एम्बेसडर के माध्यम से हमला कराया गया। 1835 में हिंदुस्तान की शैक्षणिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया। हिंदुस्तान में संस्कृति पर हमला किया गया। 1835 के बाद 1947 में गांधी और वीर सावरकर, भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सेनानियों और क्रांतिकारियों और
अहिंसा के पुजारियों के बल पर यह देश आजाद हो गया। लेकिन 1835 में जो शैक्षणिक व्यवस्था पर हमला लॉर्ड मैकॉले ने इस देश में किया, जिसके कारण पिताजी और बाबूजी पहले पापा में बदले, फिर पॉप्स में हो गए, फिर डैड हो गए और अब डेड होने के कगार पे खड़े हैं। उस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास सरकारों ने किया क्या? माननीय कुलपति बैठे हैं, देश भर के वरिष्ठ प्रोफेसर बैठे हैं, हमारे जैसा एक अल्पज्ञ नौजवान आपके समक्ष अपनी बात को रख रहा है। 1835 में इस देश की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो हमला किया गया, 1947 में जब यह देश आजाद हुआ और लाल किले पर उस समय के लोगों ने भारत का झंडा फहराया, तो क्या देश की सरकार बनने के बाद, देश की स्वतंत्रता स्वाधीनता के उपरांत देश की पहली कैबिनेट में लॉर्ड मैकॉले के द्वारा थोपी गई फिरंगी शिक्षा नीति के बदलने के लिए कैबिनेट में कोई प्रस्ताव लाया गया? बताइए मित्रों, नहीं लाया गया। किसने लाया? कब लाया? कौन था वो महान व्यक्तित्व? किसकी सरकार में यह हुआ? आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी उस महान आत्मा का नाम, उस महान व्यक्तित्व का नाम कोई और नहीं, गुजरात की भूमि से निकला हमारा आपका सबका लाडला नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है जिसने नई शिक्षा नीति लागू करके देश के अंदर लॉर्ड मैकॉले के जड़ों को खंगाल कर बाहर उखाड़ के फेंकने का काम किया और जवाब दिया फिरंगियों को कि मेरा हिंदुस्तान बदल चुका है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कास्कर साहब और डॉक्टर पाठक जैसे विद्वान विभूतियों को भी संवाद करना है आपके साथ, और मुझे भी क्षमा प्रार्थना और याचना करके मंच की अनुमति से आगे के लिए प्रस्थान करना है। मैं प्रथम सत्र में आमंत्रित था, माननीय कुलपति जी के निर्देश पर, आदेश पर, अध्यादेश पर मुझे भी इस सत्र में बोलने का अवसर मिला और मुझे जाना था, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आप तमाम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हुए आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन हेतु जो भी योगदान, जो भी अंशदान, जो भी श्रमदान अपने निज कैरियर निर्माण के अलावा आप दे सकते हैं, वो देने का काम कीजिए। इस देश को सुंदर और यशस्वी बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्वगुरु बनेगा। आज पूरी दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता नरेंद्र मोदी जी को देखकर उठ खड़े होते हैं, क्योंकि लगता है मानो सूर्य आ गया हो। यह परिवर्तन है पिछले 8 सालों का, इसको स्वीकार करना होगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, sir. Before calling my next speaker, I would like to make one announcement. All the students who have not yet registered, please go for registration after this session, and there will be lunch before that you get registration, right? Thank you. Now I would like to call to the next speaker, Dr. Mangesh Neelkant Pathak, who is an assistant professor, Department of Sanskrit, R.S. Mundley Dharmpet, Arts and Commerce College, Nagpur. नमः सभायै सभापति भैश्च नमः। मंच पर विराजमान हमारे ज्येष्ठ माननीय डॉक्टर मोहन काशीकर जी, मंच के सम्मुख गुरुतुल्य डॉक्टर श्रीनिवास जी वरखेड़ी, हमारे संस्कृति के धुरीण जिन्होंने संस्कृति का वहन किया है, ऐसे करपात्री माननीय अभिषेक करपात्री जी, इस सभागृह में उपस्थित भारतीय विद्या भवन के संस्कृत विभाग के माननीय निदेशक गिरीश जी जानी जी, इस सभागृह में उपस्थित अन्य प्राध्यापक वृंद एवं इस विषय पर जो कि भारत की विकास यात्रा से संबंधित एक विषय आज हम दिन भर संवाद के रूप में आपस में बांट रहे हैं, ऐसे विषय को चिंतन करने के लिए पधारे
अन्य सम्माननीय वृंद तथा विद्यार्थी छात्र मित्रों, आज वस्तुतः इस क्रम में आज के जो विकास यात्रा का क्रम है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, इन्होंने स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में इस प्रकल्प को सबके सम्मुख लाने के लिए एक विचार किया और भारत के स्वतंत्रता के उपरांत सांस्कृतिक दृष्टि से जिन जिन चीज़ों को हमने सोचना चाहिए, ऐसे सभी विषयों को सोचने के लिए एक विकास यात्रा, जिसको हमने इंग्लिश में बोला है कि न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिक इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को सोचने के लिए हमें एक कार्यक्रम केंद्रीय स्तर पर लाना पड़ा। यह हमारे शिक्षा व्यवस्था का प्रथम अपयश है। शुरुआत यही से करता हूं कि कोई एक प्रकल्प लाना पड़ रहा है कि जिसमें हमारी सांस्कृतिक चीजों को हम समझ ले और इंटेलेक्चुअल लेवल पर डायलॉग करें, छात्रों से संवाद करें। यह अपयश है, क्योंकि जिन मूल्यों का, जिन सांस्कृतिक चीजों का ज्ञान हमें बचपन से होना चाहिए, ऐसी चीजों को आज तक हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था से अछूत रखा। कभी धर्म के नाम पर, कभी उसके किसी विषय के नाम पर, कभी उसमें कुछ राष्ट्रीयता, स्थानिकता, अनेक मुद्दों के आधार पर हमने इन सभी हमारी धरोहरों को, जिन्होंने भारत को जोड़ के रखा, गत 1000 साल में भारत पर अनेक प्रकार के आक्रमण हुए हैं। राजकीय आक्रमण हुए हैं, युद्ध की जैसे कुछ युद्ध के आक्रमण हुए हैं, कुछ सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं। इन सभी आक्रमणों, कुछ धार्मिक आक्रमण हुए हैं परधर्म से, इन सभी को झेलते हुए हजारों साल से, 2000 साल से हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण है, आज तक अक्षुण्ण है। आज भी हम यहाँ पर उपस्थित है उसी ही माला के रूप में, अलग अलग फूल के रूप में। लेकिन फिर इस विषय में आते हैं कि ऐसा कोई एक विषय चिंतन करने योग्य हमें क्यों लगा, कि जिस विषय पर हमने चिंतन करना चाहिए। कुछ मुद्दे निकालकर हमने उस विकास यात्रा का नाम दिया। उस विकास यात्रा का पहला पड़ाव, जिसे हम बोलेंगे, मराठी में उसे पड़ाव बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं उसको, इंग्लिश में हम मुकाम बोलेंगे। पहला मुकाम या इंग्लिश में हम बोलेंगे स्टेशन। यात्रा ही कर रहे हैं तो स्टेशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा पहला स्टेशन आज हम यहाँ पर ले रहे हैं भारतीय विद्या भवन के परिसर में। स्थानक, इस स्थानक पर हम सब लोग एकत्रित हैं और कुछ इन्हीं विषयों को चिंतन करने के लिए हमारे सम्माननीय जो प्रमुख उद्घाटक के रूप में आए थे, माननीय महामहिम राज्यपाल जी, माननीय श्री श्रीनिवास जी वरखेड़ी जी, इन्होंने कुछ विषयों को हमें शुरुआत कर दी है। उसी विषय को हम आगे बढ़ेंगे। हम सोचते हैं कि भारत का अभी अमृत काल आ गया है। हम सब लोग हैं, जब हम हमारी किसी चीज़ को सोचते हैं, देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारी उम्र है, तो हम उम्र के अलग अलग स्टेजेस, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, अलग अलग कक्षा, अलग अलग स्टेजेस के आधार पर हम बांटते हैं। पहले हमारा बचपन होता है, फिर टीन एज में आते हैं, फिर हम आगे चल के यौवन में आते हैं, प्रौढ़ में आते हैं, वृद्धापा आते हैं। ऐसे ही हर किसी के चरित्र में ऐसे टप्पे, जिसे हम बोलेंगे, होते हैं। और उसी आधार पे अभी हम देश के स्वतंत्रता के बाद अभी एक विषय और आया कि मेरे पूर्व वक्ता ने या पहले विषय में आए कि हम अवलोकन कर रहे हैं गत 75 वर्षों का। हम स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जब अवलोकन करते हैं तो जो हमें उत्साहवर्धक चीजें हुई कि नहीं हुई, तो निश्चित हुई है। जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि
स्वतंत्रता के उपरांत सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। आज जिस स्तर पर हम पुनर्निर्माण के बारे में सोचते हैं वो तब पहला पुनर्निर्माण हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने जो पहले बताया कि धार्मिक, भाषिक, कुछ सामाजिक और अन्य कारणों से वो जो गति उसे प्राप्त करनी चाहिए थी, भारत के नवनिर्माण के हेतु जो गति प्राप्त करनी चाहिए थी, वह गति कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गई, कहीं ना कहीं उसकी मंद हो गई, कहीं ना कहीं उस गति से जो चीजें होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। क्योंकि जब तक हम हमारे संस्कृति को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि देखिए माला में कितने भी भिन्न भिन्न कलर, रंगों के, वर्णों के पुष्प हो, जितने ज्यादा वर्णों के पुष्प हो उतनी माला सुंदर दिखती है, लेकिन माला में नहीं दिखने वाली जो चीज होती है वो होती है उसको पकड़ के रखने वाला धागा। वो धागा हमारी संस्कृति है, वो धागा हमारी धर्माधिष्ठित विचार है। हम धर्म इसलिए बोलते हैं कि कोई टीका लगा लेगा, कोई शिखा धारण करेगा, इसे धर्म नहीं बोला है किसी भी शास्त्र ने। अभी हमने उसका एक लौकिक स्वरूप ही उसको पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन जो हम धारण करते हैं उसे जब हम धर्म बोलते हैं तो इस धर्म के दृष्टि से आच्छादित जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का जब तक पुनर्जीवन नहीं होगा, उसका पुनर्प्रस्थापन नहीं होगा, तब तक हम इस विकास यात्रा को शुरू नहीं कर सकते। जबकि 47 के बाद सबसे पहली एक उमंग जागी थी सोमनाथ के जैसे ही मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ कि ऐसे ही कुछ अनेक स्थान थे कि जिसमें भी हम ये सब कर सकते थे, लेकिन उसे करने के लिए हमें लगभग 70 साल का इंतजार करना पड़ा। तो हम जब सब चीजों को देखते हैं तो उसकी गति, उसके विचार, उसके सभी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हमें देखने चाहिए। जब हम और एक विषय कल आया था कि सांस्कृतिक जिसे हम बोलते हैं कि कल्चर अ लाइफ वर्ल्ड, जो हमारा जीवन विश्व है, हमारे जीवन के अन्य आयामों में हमारी संस्कृति का सहभाग, हमारे संस्कृति का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम हमारे और वो हम भूल गए। अभी के मेरे पूर्व के वक्ता ने सच में कहा कि हम पहले हम बाबूजी, पिताजी से हम पापा मम्मी हो गए, फिर डैड हो गए, फिर डेड हो गया। क्या डेड हो गया? तो हमारे जीवन जीने का नजरिया डेड हो गया। हमारे जीवन को समझने के लिए जो हमारी क्षमता थी हमारी, वो डेड हो गई। हमारी जब क्षमताएं ही डेड हो गई और हम हर चीज के लिए कहाँ देखते हैं, पाश्चात्य लोग क्या करते हैं। अभी योग दिवस का जो इनिशिएटिव जिसे हम बोलेंगे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, लेकिन आज भी जो मध्य शिक्षित, देखिए मैं क्या बोलता हूं कि शिक्षा के भी अलग अलग स्तर होते हैं। हम बोलते हैं ना अशिक्षित, उच्च शिक्षित, उसमें एक है कि जो शिक्षित तो है, डिग्रीज उनके पास बहुत सारी है, लेकिन शिक्षा का अर्थ ही उनको मालूम नहीं है। वो शिक्षा को केवल रोजगार के लिए देखते हैं। वैसे अर्धशिक्षित जो हमारी एक पीढ़ी है उनको ये सब चीजें पुरानी लगती है। उनको इन सब चीज़ों, मैं जब संस्कृत पढ़ाने के लिए बच्चों से बात करता हूँ, संस्कृत में आता हूँ, तो उनको लगता है अरे बाप रे संस्कृत पढ़े हो, और फिर बोलते हैं संस्कृत में क्या करते हो, क्या कमा लेते हो, या फिर कुछ नौकरी है क्या? मैं बोला सबसे ज़्यादा नौकरी और अपॉर्चुनिटी संस्कृत में है। 14 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है और कई जगह पर कॉलेजेस है, स्कूल में संस्कृत है। अरे अच्छा पढ़ो, बच्चों को अच्छा योगदान दो, आपके जीवन में करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये समझने के लिए वो अर्धशिक्षित लोग उतने सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपना कार्य अन्य संस्थाओं ने किया है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस गत 75 सालों का हम जब सिंहावलोकन करते हैं आगे के 25 सालों के लिए, तो उसमें हमारी गति कहीं मंद पड़ी है, कभी हम एक ही जगह पर कदम ताल कर रहे हैं और कहीं कहीं हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, ऐसा हमें ज्ञात होता है। अब तेजी से दौड़ना क्या होता है? सिंह जी ने अभी कुछ समय पहले बताया कि आप में से कभी 7 साल पहले या उससे पूर्व काशी गए हो। मैं मेरे सभी मित्रों को बोलता हूं कि यदि आप 7 साल पहले गए हो तो अभी काशी जरूर जाइए।
क्योंकि उसमें एक स्वत्व का भाव जागृत होता है। जब हम पहले काशी जाते थे तो जैसे उन्होंने बताया संकरी गलियों में जाते थे, कुछ गलियारे होते थे, कुछ ऐसा एक अलग वातावरण होता था। और आज हम जब काशी जाते हैं तो काशी विश्वनाथ महादेव की जो भव्यता हमारे दृष्टिगोचर होती है, उससे मन में एक भाव जागृत होता है कि हम बदल रहे हैं। पहले जाते थे तो जो अस्वच्छता, कंजेक्शन जिसे बोलते हैं, ये महसूस करते थे। अभी भव्यता और उदारता। अभी मैं गया था कुछ दिन पहले, तो उस समय दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले, हमारे एक दोस्त साथ में थे, वो चलो अन्नपूर्णा जाएंगे। मुझे लगा अन्नपूर्णा जाने के लिए अभी गेट के बाहर जाके फिर राइट लेना पड़ेगा। वो बोले नहीं, वो जो सामने मंदिर दिख रहा है वो अन्नपूर्णा माता मंदिर है। यानी अभी वो कैंपस के अंदर आ गया है। आप देखिए इतनी भव्यता वहाँ पर जो जब दिखती है तब हमें एक अनुभूति होती है, और यही अनुभूति हमारी शिक्षा है। हम क्लासरूम में जितना पढ़ते हैं उससे कई अधिक पढ़ना हमारे समाज में होता है, हमारे देश में होता है, हमारे देश के संबंधों में होता है। और इन सब संबंधों को हमें सजगता से देखना है। एक छात्र के रूप में हमेशा देखिए कि आपको हर चीज जब सीखनी है तो सजगता से देखते रहना है। आप निर्जीव होकर पढ़ नहीं सकते। आप सिर्फ क्लासरूम में मैं मार्क ले लूंगा और फिर पढ़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसलिए ऐसे सजग छात्रों के सामने मुझे एक विषय दिया गया है, उस विषय के लिए मैं उपस्थापन करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। विषय है पद्म पुरस्कारों के बारे में कुछ आपसे चर्चा करना। पद्म पुरस्कारों के बारे में सामान्यतः हम सबको पता है कि नागरी पुरस्कार जो दिए जाते हैं, जैसे सर्वोच्च कुछ कार्य करने के लिए पुरस्कारित किया जाता है, तो उसमें सेना के पदक होते हैं और कुछ पदक नागरी होते हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं। नागरिकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को हम क्या बोलते हैं? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कितने हैं पता है आपको? स्टूडेंट्स के लिए बता सकते हैं कोई पद्म पुरस्कार? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पद्म पुरस्कार पहली बार सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए, मुझे यहाँ पर डायलॉग के लिए बुलाया गया है। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक वरखेड़ी सर मुझे डांटेंगे कि अरे बच्चों से डायलॉग नहीं किया तो फिर क्या किया, भाषण दे के थोड़ी जाना था। तो पद्म पुरस्कारों के बारे में हमें कितने लोगों को पता है कि भाई पद्म पुरस्कार क्या है? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12। देखिए 12 लोग कम से कम यहाँ पर है जिनको पद्म पुरस्कार के बारे में जानकारी है, पता है। तो स्वतंत्रता के पश्चात हमने भारत में कुछ नागरी पुरस्कार देने के बारे में घोषणा की, और उसी घोषणा की श्रृंखला में हमने सर्वप्रथम पद्म विभूषण का प्रस्ताव रखा 1954 में, और उसके बाद हमारे केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला में पद्म भूषण और पद्मश्री ऐसे 2 और पुरस्कारों को उसमें जोड़ा और 3 नागरी पुरस्कार दिए। सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारत रत्न, वह नागरी होने के बाद भी पद्म से थोड़ा अलग होता है, उसकी अलग एक गरिमा है और अलग उसकी प्रक्रिया है। लेकिन तीनों पद्म पुरस्कार यह केंद्र शासन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और इन पुरस्कारों के संदर्भ में हम जब सोचते हैं तो 54 यानी 1954 से लेकर कुछ 2-3 साल बीच में किसी कारणवश नहीं दे पाए, ऐसे 3 साल छोड़ दिए, तो बाकी सब सालों में यह पुरस्कारों का वितरण हुआ है। लगभग हम पकड़ लेंगे कि 60 साल हमने इन पुरस्कारों का वितरण किया है। लेकिन इस भारत की यात्रा के संदर्भ में हमारे पद्म पुरस्कार, इनके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता क्यों हुई? विषय यही से शुरू होगा कि पद्म पुरस्कार तो पहले से दिए हैं, 60 साल से दे रहे हैं। देने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। कोई व्यक्ति या समूह आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के पश्चात वो उस व्यक्ति का नाम और उसके कार्य को गौरवान्वित करने के लिए कुछ चीज़ें बताता है, और बाद में उस व्यक्ति को वह पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कारों को देने के लिए भी कुछ श्रेणियां निश्चित है। जैसे पद्म विभूषण के लिए आपका किसी निर्धारित विषयों में आपका क्या होना चाहिए कि आपकी उसमें जो सर्विस है वो डिस्टिंग्विश यानी वो रिमार्केबल अच्छी होनी चाहिए, साथ के साथ उसको वो
यानी विशेष के साथ उसके साथ वो योग यानी वो एक ही होनी चाहिए, यानी उसमें स्पेशली कुछ होना चाहिए। यानी आप सामाजिक काम कर रहे हैं तो कुछ विशेष सामाजिक काम करना चाहिए, आप राजनीति में है तो आपकी कुछ विशेषता होनी चाहिए, आप व्यावसायिक है, कुछ उद्योजक है तो आपके कुछ उद्योजक होने के नाते। अब देखिए, हम देखते हैं, आप तो मुंबई शहर में रहते हैं, हजारों उद्योजक यहाँ पर है, लेकिन हर उद्योजक का अपना एक एक वैशिष्ट्य होता है। जैसे ही हम किसी उद्योजक के बारे में भी सोचते हैं तो उसके स्वभाव के अनुसार उसका एक इमेज हमारे मन में तैयार होता है। हम राजनेता को सोचते हैं, जैसे हमारी विचारधारा है उस तरीके से हम उसको मैच करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको श्रेणीबद्ध करते हैं। हर किसी को, कोई कलाकार है, कोई टीवी पिक्चर्स में काम करने वाला है, उसको भी हम हमारे हिसाब से श्रेणीबद्ध, ये सामान्य प्रक्रिया है। तो पहले कालखंड में ऐसा होता था, यानी इसकी जो प्रक्रिया है वह ऐसी है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यदि कुछ काम करते हैं, डिस्टिंग्विश कार्य करते हैं, तो उसके लिए आपको पद्म विभूषण दिया जाता है। और आप ऐसे ही कुछ डिस्टिंग्विश लेकिन हाई ऑर्डर में अच्छे प्रमाण में करते हैं तो उसमें आपको पद्म भूषण दिया जाता है। और केवल आप डिस्टिंग्विश विशेष कार्य करते हैं तो आपको पद्मश्री दिया जाता है। प्रक्रिया ऐसी थी कि पहले कुछ नाम जाते थे और उन नामों के आधार पर एक राष्ट्रीय कमेटी बैठती थी और वो कमेटी के जो 8-10 सदस्य है वह उसमें से कुछ नामों की सिफारिश, जिसे मराठी में बोलते हैं रिकमेंडेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, वह नाम प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रपति जी के क्रमशः उनके पास जाते थे और वो उनको मुहर लगाने के बाद, हामी भरने के बाद, उन्होंने उसको मान्य करने के बाद पुरस्कारों का घोषणा होती थी। ऐसा ये क्रम इन पुरस्कारों के बारे में पहले से तय था, जो 54 से हम देखते आए हैं। अब इस विकास यात्रा में विशेष क्या हुआ जिसकी चर्चा हमें करनी पड़ रही है? तो विशेष यह हुआ है कि 1916 से कुछ प्रक्रिया बदलना चालू हुई और 16-17 के बाद वह प्रक्रिया में एक परिवर्तन आया और एक सुंदर नाम हमारे उस समय के माननीय राष्ट्रपति जी, उन्होंने इस एक नाम हैशटैग करके चलाया। आजकल क्या बोलते हैं हम उसको, मोबाइल के एंड्रॉयड के ज़माने में और यो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम के ज़माने में हैशटैग चलते हैं ना, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, तो हैशटैग चालू किया पीपल्स पद्म। हम इसके बारे में सोचने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब ये पीपल्स पद्म क्या है? पद्म पुरस्कारों के बारे में चिंता और चिंतन हम पहले से कर रहे हैं। हम जब स्वतंत्र हुए उसके बाद में हमने सोचना चालू किया, हमने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अच्छे चीज़ों को अच्छा गौरवान्वित करने के लिए हमने इस पुरस्कारों का नाम दिया। उसकी जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी, आप उसके बारे में विशेषता बाद में भी सोच सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ चर्चा का विषय है पीपल्स पद्म कहने का मतलब क्या हुआ। इसके पहले पीपल्स नहीं थे क्या? तो नहीं, उसके पहले हमारे यहाँ कुछ लोग रिकमेंडेशंस करते थे। बाद में हमने उसको जब ऑनलाइन किया तो व्यक्ति खुद को भी रिकमेंड कर सकता है, व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को भी, समूह को रिकमेंड कर सकता है, मैं किसी को भी रिकमेंड कर सकता हूँ। और उस वजह से जो आवेदन उसके पूर्व आते थे 2016-17 के पूर्व 2000, 1500 ऐसे आवेदनों की संख्या बहुत बढ़ गई, 7-8 हज़ार के ऊपर आवेदन आने लगे और उस आवेदनों से हम पद्म पुरस्कार देने लगे, इसलिए वो हो गए हैं पीपल्स पद्म। बेसिकली उसमें जो मूलतः जो परिवर्तन हुआ कि पहले जो कुछ एक 7-8 लोग तय करते थे नामों को या फिर आए हुए नामों में से सोचते थे, आज वो नया नाम भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे कुछ नियमों में परिवर्तन करने के बाद यह संकल्पना आगे आई है जिसका नाम है पीपल्स पद्म, यानी सामान्य लोगों के पद्म पुरस्कार। और सामान्य लोगों के पद्म पुरस्कार होने के वजह से उसमें क्या परिवर्तन हुए उसको हम मोटा मोटी केवल 3 चीज़ों को ही हम देखेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा भी है और हम जो आगे के विषय भी हमें लेने हैं। तो लोगों के पद्म होने के वजह से उसमें कुछ चीज़ें जो पहले नहीं होती थी वो चीज़ें होने लगी। कौन सी होने लगी? तो यह पुरस्कार जो थे उसमें
सामान्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, व्यक्ति स्वयं का भी आवेदन कर सकता है, मैं मेरे दोस्त किसी मित्र का भी आवेदन कर सकता हूँ। इस कारण जन भागीदारी बढ़ने के वजह से वह पीपल ओरिएंटेड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वह जन सरोकार रखने वाला पद्म पुरस्कार हो गया। केवल दिल्ली से कोई घोषित कर रहा है ऐसा नहीं है, सामान्य लोग भी उसमें सहभागी हो रहे हैं। और उसके वजह से पद्म पुरस्कारों में जो दूसरा परिवर्तन हुआ है वह हो गया है कि पद्म पुरस्कार जियोग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से, देखिए 54 से लेकर 14 तक जो डेटा अवेलेबल है आप देख सकते हैं, मैं उसको केवल बता रहा हूँ कि पद्म पुरस्कार ज़्यादातर मुंबई, दिल्ली या इनसे रिलेटेड कोई एरियाज यहीं से होते थे। मैं मुंबई में रहकर ये बात कर रहा हूँ, कल जाके कोई बोलेगा कि कैसा है, तो उन्होंने महाराष्ट्र लिखा है डेटा देते वक्त, पर उसमें भी यदि किसी कलाकार को पुरस्कार देना है तो बॉलीवुड से किसी को चुना जाता था। ऑब्वियस वो मुंबई में रहता है इसलिए उसका नाम मुंबई से जोड़ा जाता था। आज यदि कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है तो मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को दिया जाता है कि जो मधुबनी पेंटिंग में अपना कला का कार्य करता है। तो पुरस्कारों का जो भौगोलिक केंद्रीकरण हुआ था कुछ शहरों तक, वह 3 टायर, 2 टायर और टाउन प्लेस तक, और किसी इसमें रूरल एरिया तक उसका विसर्जन हुआ। पहले कृषि विषय में दिया जाने वाला कोई पद्म पुरस्कार दिया जाता था किसी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अप्रोचेबल नहीं था। आज हम दे रहे हैं जो बीज वाली बाई करके जलगांव खानदेश के जवाहर के किसी एक महिला को। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इसको हमें छात्र है इसलिए सूक्ष्मता से देखना है कि परिवर्तन क्या होते हैं। ऐसा ही परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूँ, ये परिवर्तन अभी मैंने जस्ट किसी ने किए और मैंने बताया, ऐसे नहीं है। गत 8-9 सालों से ये परिवर्तन हो रहे हैं। जब हम छात्र बोलते हैं तो हम सजगता से उसकी ओर देखने चाहिए, हमने देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हर साल हमने सोचना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के छात्रों को बहुत बार बोलता हूँ कि यदि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं उत्तर भारत में जब जाता हूँ तो मुझे वहाँ के लोगों, बच्चों के, पर्टिकुलरली जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका डिटर्मिनेशन होता है। वो बहुत सघनता से पढ़ते रहते हैं किसी भी विषय को, चाहे वो राज्यशास्त्र पढ़े, चाहे वो विज्ञान पढ़े। हमारे बच्चे तो देखते हैं, नोट्स दीजिए, 100 पानों वाली नोट्स है तो वो बुक्स वेंडर को बोलते हैं इससे छोटी मिलेगी क्या, क्योंकि अगले हफ्ते परीक्षा है। तो ऐसा न करते हुए हम साल भर इन चीज़ों को चिंतन करके सोचें, खुली आंखों से सोचें। तीसरा जो परिवर्तन हो रहा है इस पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में, जो भौगोलिक सहभागिता बढ़ी है, उसके वजह से, उसके क्रम में है वो कि दूर दराज के, कभी मिजोरम के किसी व्यक्ति का नाम आता है कि जो हम पता भी नहीं कि उसने क्या कार्य किया, और पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला में एक होता है कि उनको पुरस्कार दिया जाता है, तब उनका जीवन पट भी बताया जाता है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जिन्होंने किसी गांव के लिए ही कार्य किया है, किसी ने वनांचल में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्य किया। बहुत छोटा यूनिट है उसका, 100-200 ही बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन वो 100-200 बच्चे भी उस जिले की शान बन रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जब हम देखते हैं पद्म पुरस्कारों में, तो भी हमको लगता है कि यह पद्म पुरस्कार किस दौर जा रहे हैं, वह पीपल्स पद्म हो रहे हैं। इसलिए हमें इन सभी विषयों को, जो हमारे इस विकास यात्रा में आने वाले बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को हमें बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से लेना है, क्योंकि बहुत सोच विचार करके इन विषयों का चयन किया गया है। इन विषयों में अनेक मुद्दे हैं, ऐसे ही अनेक मुद्दे, अभी समय के कमी के कारण हम सभी मुद्दों को यहाँ पर सबके सामने चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पुस्तक निर्माण होगा उसमें इन सब का चिंतन होगा, विचार होगा, और वो आप सब पढ़े। छात्र के रूप में जब आप सब पढ़ेंगे, आपकी संकल्पनाएं स्पष्ट होगी, उसके बाद ही आप अपना स्वतंत्र भारत का आगे के 25 साल का विजन आप तय कर पाएंगे। और वो आगे के 25 साल आप सब तय करें, इसलिए हमारे यहाँ के प्राध्यापक वृंद आपके साथ में हैं। आप उस और खुद को अग्रसर करने के लिए आपको तैयार कीजिए। यही शुभकामना देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
Very interesting with fact detailing lecture, sir. Thank you very much. Now I would like to call upon our chair of the session, Dr. Mohan Sri Krishna Kashikar ji. Over to you, sir. सभी को प्रणाम। इस सभा में सम्मिलित होकर बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ। विकास यात्रा जो इस इंटेलेक्चुअल डायलॉग को नाम दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा सटीक है और उससे काफ़ी विचारधाराएं उत्सर्जित होती है। मैं इस सभा में, इस संगोष्ठी में सम्मिलित होकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। आयोजक के रूप में प्रोफेसर वरखेड़ी सर जी ने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका और सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो विषय हमारे इस सत्र में है, कल्चर, संस्कृति पर हमारे मेरे मित्र विद्वान वो कुछ बोले। कल्चर या संस्कृति जिसे बोलते हैं, बड़ा कठिन शब्द है, लेकिन आजकल के ज़माने में इंटेलेक्चुअल चर्चाएं जैसी होती है, विद्वानों में जिस हर एक विषय पर जो चर्चाएं होती है, उससे संस्कृति इस विषय पर भी बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संस्कृति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी जैसे विषयों में होता है, पॉलिटिकल साइंस में भी होता है। पॉलिटिकल साइंस में या सोशोलॉजी में तो मल्टीकल्चरलिज्म करके एक नया दृष्टिकोण आज उभर कर आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को जैसी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। उस संस्था का यही एक उद्देश्य है कि दुनिया भर में जितनी भी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, हर एक देश में उनका प्रचार हो, उनका संवर्धन हो, उनका संरक्षण हो। इस दृष्टि से यूनेस्को जैसी जागतिक स्तर पर एक संस्था है जो कार्य करती है। संस्कृति आखिर है क्या, जो हम अपनी दिनचर्या में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, हम किस तरह से वेश परिधान करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं, किस तरह से हम ईश्वर या इस भौतिक स्तर पर चल रही गतिविधियों को हम देखते हैं, ये सभी एक संस्कृति के पूरे संकल्पना में, उसके दायरे में आता है। मुझे याद है जब मैं विद्यार्थी था, हमारे यहाँ केन्या, नाइजीरिया के स्टूडेंट्स आते थे। हम कभी कभी उनमें संवाद होता था, बातचीत करते थे। तो जब भी हम उनके कमरे पर जाते थे तो हमको हमारा स्वागत करने का उनका एक अजीब तरीका था। केन्या के स्टूडेंट थे जिसे हम मराठी में सुपारी कहते हैं, बेटल नट, वो देकर हमारा स्वागत करते थे। और अपेक्षा ये थी कि जब वो हमारे घर आए तो वही बेटल नट उनको देकर हम उनका स्वागत करेंगे। तो ये बड़ी ऐसी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं जो हर देश में, हर समुदाय में, समूहों में पाई जाती है। जैसा मेरे एक मित्र ने कहा, वक्ता ने कहा, और इसके पहले के वक्ता ने भी कहा कि ऐसी परंपराएं भारत में बहुत सारी है। सिंपल गेस्चर लाइक डूइंग नमस्ते इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर, लेकिन वो हम भूल गए हैं। ब्रिटिशों की शिक्षा की वजह से, ब्रिटिशों की शासन की वजह से शेक हैंड करना आजकल मॉडर्न समझा जाता है, ज़्यादा आधुनिक समझा जाता है। किसी के जन्मदिन पर
उसकी आरती करना, उसको टीका लगाना, उसको आशीर्वाद देना, बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना, ये प्रथाएं अभी पुरानी दकियानुसी मानी जाती है। और केक काटना, पार्टी करना, ये आजकल की आधुनिकता है। तो संस्कृति में ये सब बातें आती है और जैसे जैसे विचार बदलते रहते हैं, ज़माना बदलते रहता है, हम नए चीज़ों का, नए परंपराओं का स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारी जो कुछ पुरानी परंपराएं हैं, पुराने विचार है, वो हम उसको कायम रखें, उसको अपने व्यवहार में डालें, ये भी इतना ही ज़रूरी है। एक साउथ अफ्रीका के एक क्रिश्चियन मिशनरी है, उनका एक व्हाट्सएप पर मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था। उन्होंने नमस्ते इस शब्द का अर्थ समझाकर वो कैसा महत्वपूर्ण है और आजकल के ज़माने में उसका अर्थ कितना मॉडर्न है, कितना आधुनिक है, ये बताया था। उसका शब्द, संस्कृत के विद्वान यहाँ बैठे हैं, नमः ते, ये इसका अर्थ है। मतलब मैं आपके में जो ईश्वरीय अंश है उसको मैं नमन करता हूँ। हर एक व्यक्ति को ईश्वर के रूप में देखना, यही हमारी संस्कृति है और उसी कारण नमस्ते ये शब्द का विकास हुआ है और वो हमारी प्रथा पुराने कालों से चलती आ रही है। तो ये अच्छी बातें जिसका कुछ एक वैज्ञानिक आधार है, परंपराएं जिसका कुछ अपने दैनंदिन व्यवहार में कुछ मतलब है, कुछ उसका अर्थ है, उसको हमने स्वीकार करना चाहिए, उसको हमने उसका संरक्षण करना चाहिए। लॉर्ड मैकाले की बात हुई अभी, उन्होंने जो शिक्षा नीति यहाँ लगाई, उनका उद्देश्य अलग था। उनको सिर्फ हमारे यहाँ से क्लर्क लोग चाहिए थे जो उनका बताया हुआ काम करे, ज़्यादा सोचे ना और किसी की क्रांतिकारी या स्वतंत्रता के आंदोलन में वो सहभागी न हो, ये एक उनका उद्देश्य था। लेकिन उसी साथ हम देखते हैं जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने जो अपना मार्ग अपनाया, गांधी जी ने सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग अपनाया, सावरकर जी या भगत सिंह जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। जो भी उन्होंने विचार प्रस्तुत किए या भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जो भी मार्ग प्रस्तुत किए, वो उनकी विचारधारा, उनके एक्शंस, वो भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों से प्राप्त हुए थे। तो वो कोई ब्रिटिशों से लिए नहीं थे। उन्होंने अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने अभ्यास से उन्होंने ये मार्ग स्वीकार किए थे और इसीलिए इन सब का एक जो परिणाम हुआ वो भारत की स्वतंत्रता को, भारत स्वतंत्र होने में हुआ है। एक और बात चली थी कुछ वक्ताओं ने की, हमारी जो परंपरा है और जो परंपराएं, हमारे विचार, हमारे मूल्य व्यवस्था जो हम भूलते जा रहे हैं, उसका बुरा असर आजकल की नई पीढ़ियों में दिखता है। हमारी फैमिली सिस्टम, हमारी कुटुंब व्यवस्था वो बिखरती हुई दिखाई दे रही है, जिसका कारण माताओं पिताओं को उनके हाल पर छोड़ देना, वृद्धाश्रम में भेज देना और वृद्धावस्था में उनकी निगरानी न रखना, उनका ख्याल न रखना, इस तरह की कुछ संस्कृति हमारे यहाँ पलपने लगी है जो असल भारतीय संस्कृति का विशेषता नहीं है। उस पर भी हमको ध्यान देना होगा। संस्कृति और परंपराएं, मूल्य व्यवस्था, ये एक शाश्वत व्यवस्था है जो हमें, जिसका संरक्षण करना होगा, जिसका हमें संवर्धन भी करना होगा। हम नई बातें ज़रूर सीखें, विज्ञान सीखें, नई नई भाषाएं सीखें, अलग अलग विषयों का अध्ययन करें, दुनिया का भ्रमण करें, संस्कृतियों का अध्ययन करें, लेकिन जो हमारी जड़ है, विच इज़ आवर फाउंडेशन,
foundation of our family life, our day-to-day behavior with others, उस परंपरा को, उस मूल्यों को बचाए रखना, उस परंपराओं को अगली पीढ़ी को सौंपना, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। इसी बात पर मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ गया। जब मैं अमेरिका में था, कुछ एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर, हमारे जिस इंस्टीट्यूशन में मैं था वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, उनसे हमारी काफ़ी चर्चाएं होती थी। एक दिन उन्होंने चर्चा करने के लिए 5-6 लोगों को हमको घर बुलाया। हम उनके घर गए और बातों करते करते उन्होंने अपने बेटे को कहा, जो बैठा था हॉल में बाजू में, बेटा सबके लिए पानी लेके आओ। वो तुरंत उठा, ट्रे में ग्लासेस लेके पानी लेके आया। कुछ आधे घंटे बाद फिर से उन्होंने, पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ सबके लिए चाय या कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। वो गया, एक आज्ञाकारी बालक की तरह से वो सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया। चर्चा ख़त्म होने के बाद जब हम घर छोड़ने लगे तब मैंने कहा, आपका बेटा बड़ा होनहार है, बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है। तो वो प्रोफेसर ने जो बात मुझसे कही वो आज भी मेरे दिमाग में घूम रही है। उन्होंने कहा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, द वर्क ही डिड, ही ब्रॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर यू, he brought cold drinks for you, for each action I have to pay him $10। ये बात सुन के मैं दंग रह गया कि एक बच्चा घर का काम करने के लिए पिताजी से पैसे लेता है। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम जो हमारे फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वो परिवार की मूल्यों को, परिवार के आदर्शों को हम मानते हैं। और परिवार ये हमारे एक समाज की, हमारी सोसाइटी की एक नींव है। इट्स अ सॉलिड फाउंडेशन। सो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज की जो बात हम करते हैं, वो अगर उसे अगर आगे बढ़ाना है, उसे अगर सुरक्षित रखना है, उसका अगर संवर्धन करना है, तो इन कल्चरल मूल्यों को, सांस्कृतिक धरोहर को, परंपराओं को हमें कायम रखना होगा, मूल्यों को कायम रखना होगा। ये सिर्फ आदान प्रदान की बात नहीं है या व्यवहार की बात नहीं है, विचारों की भी बात है कि हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे से बातें करते हैं, समाज में किस तरह से बर्ताव करते हैं, ये सब इसमें आता है। तो नई शिक्षा नीति हो या कोई भी नीति हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, सोशल पॉलिसी हो, आदिवासियों की तरफ की जाने वाली योजनाएं हो, उन सब में यही बात है। और जो जागतिक स्तर पर भी मानी गई है कि जो भी समुदाय दुनिया में है, जो भी समाज है, जिनकी विचारधाराएं हैं, मूल्य है, परंपराएं हैं, उनको सुरक्षित रखना, ये एक जागतिक स्तर पर एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। और भारत में भी पिछले 8-10 सालों में यही बात चलकर हमारे सरकार द्वारा इसी नीतियों का पालन हमारे सरकार द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे मित्र दो वक्ता थे, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे और आयोजकों को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. I would like to call upon here Dr. Sandeep Joshi, sir. Please come. धन्यवादः सर्वेषां कृते। आदरणीय मञ्चे विराजमानाः कार्यक्रमस्य मुख्यवक्तारः, उपस्थिताः गणमान्याः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, आदर्श मुम्बादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः, भारतीय विद्याभवन, एतेषां सर्वेषां संयुक्त तत्वावधाने आयोजिते अस्मिन् विकासयात्रा कार्यक्रमे अद्य अस्य दिनस्य प्रथमेस्मिन् सत्रे कुञ्जिका भाषणस्य अस्मिन् सत्रे ये गणमान्य सदस्याः अत्र उपस्थिताः आसन्। तेषु रोहित कुमार सिंह महोदयैः भारतीय विकासयात्रायां शैक्षिकयात्रा कीदृशी आसीत्, मेकाले महोदयस्य या व्यवस्था कल्पिता आसीत्, तस्य निष्कासनपूर्वकं
भारतीयपरम्पराणाम् उपस्थापनं कथं करणीयम् एतेषां विषये वयं सर्वेपि उद्बोधिताः। अतः महोदयस्य कृते अहं हार्दान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। अस्मिन्नेव उपक्रमे नागपुरतः मंगेश पाठक महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। पद्मश्री अवार्ड सन्दर्भे तैः यत् उद्बोधनम् अस्माकं कृतं महोदय भवन्तः सर्वेपि जानन्ति महाराष्ट्रे राहीबाई रोही इत्यस्याः कृते यदा पद्मपुरस्कारः प्राप्तः तदा वस्तुतः सर्वेषां कृते बहु आश्चर्यस्य विषयः आसीत्। नगर डिस्ट्रिक्ट् मध्ये सः जाता, तत्र पार्श्वस्थः अपि न जानन्ति स्म। अतः तादृशपुरस्काराणां यद् आरम्भः अत्र जाता महते सन्तोषाय तदासीत्। एतेषां विषये अस्माभिः भवद्भिः वयं सर्वेपि उद्बोधिताः। संस्थानां पक्षतः अहं कार्तज्ञभावान् भवते अत्र समर्पयामि। अस्मिन् उपक्रमे काशीकर महोदयैः वैदुष्यपूर्णभाषणेन मूल्यानाम् उपस्थापनं कथम् अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। वयं वैदेशिकतत्त्वानां यथा तत्र पुरस्कारादिकं कृतं तेन अस्माकं नाशः कथं जायमानः अस्ति एतस्मिन् सन्दर्भे वयं सर्वेपि उद्बोधिताः। महोदयानां कृते अपि धन्यवाद वचांसि अहं वितनोमि। येषाम् अत्र उपस्थित्या एषः कार्यक्रमः सफलतां गच्छति गमिष्यति ते सर्वेपि भवन्तः गणमान्य सदस्याः अत्र प्रतिनिधिभागभूताः छात्राश्च भवतां सर्वेषां कृते हार्दान् धन्यवादान् वितीर्य अहम् अत्र विरमामि। धन्यवादः। This session is over. First of all, registration. Students who have not registered, please raise your hand. All students, please raise your hand. All students, registered or not? Okay, we have a lot of students. So students, please, who have not registered, please go for registration after this session. And you will get the certificate as well. Don't leave without certificate. You have lunch arrangement. Please, all the volunteers, raise hand. All the volunteers, okay. Please guide them. All the students move to the canteen and library for lunch. And all guests, all volunteers will guide you. Move to Geeta Mandir.